أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمدللہ درس قرآن کے سلسلے سے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. درس قرآن کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم کو نصیحت کے طور پر بتایا ہے ان باتوں کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور یاد رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا. اس کے لیے یہ درس قرآن کا پروگرام ہمیں ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد رکھے ہیں. قرآن مجید کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتایا ہے. اس میں آج جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں یہ ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 50 پر 9 ہے. آیت نمبر 50 پر 9 ہے. اس کا ترجمہ، اس کا مطلب آپ کو سناتا ہوں تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہم کو معلوم ہوتا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ کے پر بھروسہ رکھتے ہیں، تمہیں بھروسہ رکھنے والوں، اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت کا مطلب اللہ بولے جیسا تمہیں زندگی گزارو، اللہ جیسا بولتا ہے ویسے زندگی گزارو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، یعنی ہمارے نبی جیسا بولتے ہیں ویسا ان کے بولنے کے مطابق تمہاری زندگی گزارو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں کے صاحب اقتدار لوگ، مطلب تمہارے اوپر جو حکومت کرتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، انہوں بولے جیسا مانو، تمہیں ان کے مطابق تمہیں چلو. اب یہ کون کیا میں تفصیل میں یہ ساری بات بتاتا ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی چیز کے بارے میں تمہارے اندر اختلاف ہو جائے، بات اختلاف کی ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ ایک دوسرے کی بات کے پیچھے مت پڑو، اس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو. اور یہ کیا ہوگا؟ ذالک خیر، یہ بات بہتر ہوگی، یہ کام بہتر ہوگا. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تعویل کے حساب سے بہتر ہوگا، اچھا ہوگا. تو اب یہاں کیا بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان زندگی گزارتے وقت میں ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایمان والا بولتا ہے، میں ایمان والا ہوں. کیا ایمان والا؟ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، میرا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اللہ کے سوا میں کسی کو مانتا نہیں. یہ جو آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے اور اس کے اوپر قائم رہتا ہے مضبوطی کے ساتھ، تو اسے کیا بولیں گے؟ ایمان والا. ایمان کا معنی بھروسہ، یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ کے اوپر ہی یقین، دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں. تو ایسا اگر تمہیں بولتے ہیں تو کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ جیسا بولتا ہے ویسا تمہیں زندگی گزارو. اللہ بولتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے 5 وقت نماز پڑھو، ہاں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، نماز پڑھ دوں. اللہ فرماتا ہے روزے رکھو، روزے رکھنے کے لیے تیار ہوں میں. روزے میں آدمی کو بھوک پیاس ہوتی ہے، پھر بھی میں صبر کر کے، تکلیف ہے تو صبر کر کے میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا. زکوٰۃ ادا کرو، ہمیں محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ لوگوں کو بغیر فائدے کے دے دیتے ہیں. معمول سے ہمیں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں ہوٹل میں گئے ناشتہ کرے تو ہمیں ناشتہ کھاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، یعنی اپنے جب کا پیسہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی چیز ہم کو ملتی ہے. دکان میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، یعنی ہمارے جیب سے جو پیسہ جاتا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں ہم کو کیا چیز ملتی ہے. لیکن زکوٰۃ اور خیر خیرات جو کرتے ہیں اس کے بدلے میں دنیا میں کیا چیز بھی ملنے والی نہیں ہے. زکوٰۃ کا حساب ڈالتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ، لاکھوں کروڑوں روپے غریبوں کو دے ڈالتے ہیں، اس کے بدلے بنتی ہے دنیا میں کیا بھی ملنے والا نہیں ہے. پھر بھی اللہ کا حکم ہے، میں حکم پر، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں. اور حج کرو، حج کرنے کے لیے بہت سارے پیسے ہونا، وقت بھی لگتا ہے،
वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? ये अल्लाह का हुक्म है। तो ऐसा अल्लाह के बताए हुए तरीके में, अल्लाह के बताए हुए कामों को, चाहे वो आसान काम हो चाहे वो मुश्किल काम हो। आसान काम नमाज पढ़ना है, क्या भी तकलीफ नहीं है। हमने पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने का होता आसान काम दूसरा कोई सा भी नहीं दुनिया में, खासकर मुसलमानों के लिए। हिंदू अगर मंदिर पे जाते हैं तो पूजा के लिए 100-150 रुपया होना उनको कम से कम, नारियल होना, फूला होना, कापूर होना, फिर उद्बत्तियां होना, क्या क्या होना उनको। हमने क्या भी जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में वजू कर लिए, नमाज पढ़ ली। तो अल्लाह की इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए 1 रुपए के खर्चा करने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, क्या भी हथियार खरीदने की जरूरत नहीं, मेहनत करके पसीना टपकाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठकर कर लेते। तो आसान काम हो वो भी करने के लिए मैं तैयार हूं, मुश्किल काम है वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। अब मुश्किल काम क्या है? रोजा रहना, भूख प्यास से। लेकिन इससे बड़ा मुश्किल काम एक है, ये 2 कामान से भी पैसा खर्चा करना दे डाल सकते हैं आदमी, खैर खैरात, सदका दो भाई, खैरात दो या फितरा दो, दे डाल सकते हैं। लेकिन ये सारे कामान से बड़ा मुश्किल वाला काम एक है, बहुत तकलीफ वाला काम है। वो काम क्या है? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, जंग लड़ना, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम सब जने कर सकते नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हर इंसान चाहता है मैं लंबी उम्र जीना, मैं बुढ़ा बुढ़ा होकर जीना, मेरे पोतरे पड़ पोतरे नवासे पर नवासे, ऐसा मैं देखना 100 साल जीना मैं, हर आदमी चाहता है। कोई आदमी भी जल्दी मरने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक हमें जाकर बुढ़े को पूछे तो बुढ़ा भी मरने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है कि भाई तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ो, जिहाद करो, दुश्मन से लड़ो। वो जमाने में तलवार से लड़ते थे, अब आज का जमाना कैसा है? बामा का जमाना है, मिसाइल का जमाना है। तो इसके लिए भी मैं तैयार हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। अल्लाह के लिए मेरी जान को भी कुर्बान करने के तैयार हूं। ये काम भी मुसलमानों को वक्त आया तो करना पड़ता है, वक्त आया तो करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। बंदा ये बोलता है कि मैं अल्लाह के लिए जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। ये बहुत मुश्किल काम दुनिया में। क्यों? इसलिए कि जब तक इंसान जिंदा है सारे मजे देख सकता है दुनिया के। क्या मजे? किस्म किस्म के चीजें खा सकता है, मीठे खा सकता है, फल खा सकता है, स्वीट खा सकता है, गोश्त खा सकता है। खाने पीने का मजा एक, पहनने ओढ़ने का मजा एक, बीवी का मजा एक, औलाद के साथ खुशी से रहना वो एक मजा है। दुनिया में एक ओहदे, कार में फिरना, अच्छे बंगले में रहना, ये सब मजे हैं। इंसान को पैसे कमाना, टूर फिरना, ये सब मजे हैं। लेकिन जब मौत आती है तो ये सारे मजे खत्म हो जाते हैं, सारे मजे खत्म हो जाते हैं। जानबूझकर अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ने के लिए निकलना ये बहुत मुश्किल काम है। तो एक मुसलमान क्या होना चाहिए? एक मुसलमान का इरादा, मुसलमान का काम, अगर ऐसा मुश्किल काम भी है, सबसे बड़ा मुश्किल काम जान को कुर्बान करने का, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह जैसा बोलता है वैसा मानो, आसान काम भी करो, मुश्किल काम भी करो। अच्छा, अब ये काम कैसा करना है? करके दिखाने वाले कौन, बताने वाले कौन? अल्लाह तो आसमान से आता नहीं, भाई तू ऐसा वजू कर, तो ऐसा नमाज पढ़ कर को अल्लाह बोलता नहीं, आता नहीं। अब कौन बोलते हैं, कौन बताते हम को? हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते वजू कैसा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बिठा लेते थे, ऐसा पानी मंगवाते थे, लोटे में पानी मंगवाए और बोले ऐ लोगों देखो मैं वजू करता हूँ, वैसा तुम्हें सीख ले, तुम्हें वैसा वजू करो। तो दोनों हाथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना, फिर दोनों हाथ 3 बार धोना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी चढ़ाकर नाक साफ करना, फिर चेहरा 3 बार धोना, फिर सीधा हाथ कोहनी के ऊपर तक 3 बार धोना, फिर दामा हाथ धोना, सीधा हाथ दामा हाथ, फिर उसके बाद मसा करना, उसके बाद सीधा पाँव 3 मरतबा धोना, दामा पाँव 3 मरतबा धोना। तो इस तरीके से वजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते थे। छोटा काम वजू, ये भी नमाज पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं जैसा नमाज पढ़ता हूँ तुम देखो वैसे नमाज पढ़ो। तुम्हारी मर्जी की, तुम्हारे हजरत की, तुम्हारे बुजुर्ग की नमाज नहीं, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज होना चाहिए। आवाम की बात अलग है, आवाम जनरल पब्लिक की बात अलग है, लेकिन जो लोग आलिमा ही 7-7 साल 8 साल मदरसा में पढ़े हैं, तो ये हदीस और इस बात के मुताबिक अगर उन्हें नहीं चलेंगे बहुत जवाबदारी रहेगी उनकी। नबी साहब क्या फरमाते हैं सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं कैसा नमाज पढ़ता हूँ तुम्हें देखते हैं वैसे नमाज पढ़ो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो होना चाहिए।
लेकिन वो आगे पीछे ऊपर नीचे कर डाले नमाज को भी आगे पीछे ऊपर नीचे कर डाले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, इताअत का मतलब क्या, उन्होंने बोले जैसा करना। ये इसका हुक्म कौन दिया? अल्लाह खुद कुरान देता है, ऐ ईमान वालो तुम्हें ईमान लाए हैं तो तुम पहले क्या करो, अल्लाह की बात मानो, उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। अच्छा, जब तक नबी जिंदा है नबी की बात मानेंगे, नबी के इंतकाल के बाद किसकी बात मानना? ना, कोई इंसान तो हमेशा रहने वाला नहीं दुनिया में, कोई इंसान दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं। नबी भी एक इंसान थे, माँ बाप को पैदा हुए थे, खाते पीते थे, सोना बैठना, बीवी बच्चे सब हमारे जैसे इंसान थे। दर्जा अलग है, क्यों? अल्लाह ताला उनसे उतना बड़ा काम लिया है, उनका दर्जा अलग है। जैसा कलेक्टर भी इंसान है, लेकिन कलेक्टर का ओहदा कितना बड़ा है, गवर्नर भी इंसान है, सीएम भी, मुख्यमंत्री भी इंसान है, प्रधानमंत्री भी इंसान है, राष्ट्रपति भी इंसान है, लेकिन उनके काम को पकड़ के उनका दर्जा रहता है, उनके काम को पकड़ के, जिम्मेदारी को पकड़ के उनका दर्जा रहता है। अब क्या उन्होंने इंसान नहीं क्या? उन्हें भी खाते हैं, पीते हैं, सोते बैठते, जोरो सब भी है उनको भी, लेकिन ओहदा बड़ा, उनका काम, ओहदा का बड़ा होता है। आदमी को जितना ज्यादा काम होता है ओहदा उतना ज्यादा बढ़ता है, ओहदा उतना ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसा पैगंबरों का जो ओहदा है वो बहुत बड़ा ओहदा है, अल्लाह ताला उनको उतनी बड़ी इज्जत दिया, उतना बड़ा मर्तबा दिया है। तो क्या करना है? उनके बात मानना है, उनके तरीके में चलना है। उन्होंने जैसा वजू करे वैसा वजू करो, उन्होंने जैसा नमाज पढ़े वैसा नमाज पढ़ो, उन्होंने जैसा शादी का तरीका करे वैसा शादी करो, उन्होंने जैसा जनाजे को दफन करने का तरीका बताए हैं, जनाजे की नमाज पढ़ना, जनाजे को दफन करना, वैसा करो। मैयत को पानी कैसा नहलाना है उन्होंने कैसा बने वैसा करो। हमें जिंदगी में गुस्ल कैसा करना है उन्होंने जैसा बताए हैं, हुक्म दिया ऐसा ऐसा करने का, वैसा हमें करना है। हर काम, ज़कात कैसा देना ऐसा करना, हज कैसा करना वैसा करना, उम्रा कैसा, सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी की हर बात को, हर मामले को, हर मसले को करके दिखाए हैं। तो अल्लाह क्या फरमाता है, वातिउर रसूल, तुम्हें नबी की इताअत करो, नबी के तरीके में चलो, अच्छी बात। अब जब नबी का इंतकाल हो गया तो अब किसकी बात मानना? कौन हमारा सरदार कौन होता है, कौन लीडर होता है? तो वो भी अल्लाह ताला बता दिया। क्यों बोले तो अगर ये बात नहीं बताता अल्लाह, खाली दो बात बोलता नबी, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह तो हमारे सामने आने वाला नहीं, उन्हें हमेशा जिंदा है, उन्हें अलग है, सात आसमानों के ऊपर है। नबी हमारे सामने ही इंतकाल हो गए, बाद में किसकी बात मानना? डाउट आता ना आदमी को। तो अल्लाह ताला क़यामत तक आने वाले इंसानों के वास्ते एक रूल बोल रहा है, नबी के इंतकाल के बाद तुम्हारा जो बड़ा रहता है, तुम्हें जिसे अमीर बना लेती, अमीर का तो बड़ा हाकिम, हुकूमत करने वाला, जिसे तुम्हें सभी पसंद कर को बना लेती, उन्हें बोले जैसे तुम्हें जिंदगी गुजारना, उन्हें बोलता है चलो भाई ये काम करेंगे, चलो, उन्हें बोलता है ये काम मत करो, करना नहीं। तो मुसलमानों का जो हाकिम होता है, हुकूमत करने वाला लीडर जो होता है मुसलमानों का, और मुसलमानों का लीडर कैसा आदमी होना? सबसे अच्छा, सबसे सच्चा। मुसलमानों का लीडर कौन होता है? सबसे अच्छा, सबसे सच्चा और अल्लाह का नेक बंदा, उसे बनाना। लेकिन दुनिया का कानून अलग है। दुनिया में क्या है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो लीडर बन जाते हैं, एमएलए बनना, सरपंच बनना, सीएम बनना। दुनिया का सिस्टम कैसा है, हम देखते हैं ना, पैसे वोटांग को पैसे देखो खरीदना, शराब पिलाना और वोटांग दिला लेके नजाक बैठना। उसके बाद क्या करना, इन्हें कितनी बेईमानी होती है, 10 रुपये बेईमानी लोग करते रहते हैं। क्यों? पैसे देने का, वोटांग चुपके डाले क्या हम ना को, वोट को 2000 दिए, 3000 दिए, 5000, 10,000 दिए, वोटांग पैसे दिए हैं, और जितना लूटना है उन्हें लूट लेते चले जाते हैं। इस्लाम का कानून ऐसा नहीं है। इस्लाम का कानून क्या है कि मुसलमान पूरे मिलकर एक आदमी को अपना सरदार बना लेती, अच्छे आदमी को, नेक आदमी को, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारने वाला, सबसे अच्छा आदमी, उसे सरदार बनाएंगे तो वो सरदार सारे मुसलमानों को लेकर चलता है। कोई सा भी काम, नमाज पढ़ाना है नमाज पढ़ाता है, जंग को जाना है तो आगे आगे रहता है, ज़कात के पैसे बांटना है तो आगे बैठ कर के बांटता है, क्या कभी लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसका फैसला करना है, वो भी कैसा फैसला? अपनी मर्जी से नहीं, अपने बनाए हुए कानून से नहीं। अब हर एक मुल्क का दुनिया में कानून है, कोर्ट ही, छोटे कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो वो कोर्ट में वो कंट्री के, वो मुल्क के हिसाब से जो कानून बना ले हैं वो कानून के हिसाब से चलते ही। हिंदुस्तान का एक कानून है, पाकिस्तान का कानून है, अमेरिका का कानून है, चाइना का, जापान का, हर मुल्क का एक कानून है, उन्होंने बना लिए, वो कानून के हिसाब से उनके कोर्ट में फैसला करते आते हैं। लेकिन मुसलमानों का कानून जो है वो क्या है? वो मुसलमानों का कानून अल्लाह खुद बनाकर दे डाले है।
किताब कुरान मजीद, ये जिंदगी के हर मसले में तुम्हें कैसा फैसला करना, ये जज अपनी तरफ से क्या भी फैसला कर सकता नहीं। इस्लाम के अंदर मुसलमानों का जो जज होता है उन्हें भी अपनी तरफ से कानून बनाने का नहीं है, उसे बनाने की जरूरत भी नहीं है और बनाने की परेशानी भी उसे नहीं। क्या कानून बनाना, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट भी हो, कितना बड़ा भी कोर्ट हो, मुसलमानों का कानून एक ही कानून, यहाँ से वहां तक पूरे जगह भी एक ही कानून। और बादशाह जो होता है मुसलमानों का जो सरदार, उन्हें क्या भी रूल्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद बना के दे वाला है। बादशाह का काम क्या, अल्लाह की किताब में क्या कानून है वो कानून को लोगों के ऊपर लागू करना, उसके मुताबिक चलना होता है। इन्हें अपने दिमाग से सोच को इसे क्या कानून बनेंगे, इसे क्या कानून बनेंगे सोचने की जरूरत नहीं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उन्हें अपने अकल से बोलने की जरूरत नहीं। मेरे अकल में ऐसा करे तो अच्छा रहता है, ऐसा करे तो अच्छा रहता है, मुझे ऐसा कमाता है, मैं ये कानून पास कर दूं, बोलने की जरूरत नहीं। और बोलने का हक भी नहीं है उसे, क्यों, इसलिए कि सारे इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह बनाया है और इंसानों की जिंदगी गुजारने के लिए कानून भी अल्लाह दे डाला है। तो मुसलमानों का जो सरदार रहता है, लीडर रहता है, उसका काम क्या, ये कुरान में क्या हुक्म है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। अब वो सरदार मर गया तो उसके बाद फिर दूसरे सरदार को रख लेते, उन्हें खुद बोल सकता नहीं क्या मैं बादशाह हूं, ये मेरे बाप की जागीर, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा पोतरा, ऐसा बोल सकता नहीं, बोलने का हक नहीं है। नहीं मेरा नवासा, नहीं तो मेरा भाई, मेरा साला, नहीं। इस्लाम का कानून क्या बोलता है, तू जब तक ये लोग पसंद कर को रख लिए हैं तू है, तेरे मरने के बाद फिर उन्हें पसंद कर रख लेती, तेरे मरने के बाद फिर उन्हें पसंद कर को रख लेती। तो ये इस्लाम का कानून है। अच्छा, तो अगर ऐसे मामलात में जिंदगी कोसा भी मामला हो, अगर लड़ाई हो गई, उन्हें एक बात बोलते हैं, मैं एक बात बोलता हूँ, उन्हें एक बात बोलती है, एक बात बोलते हैं, 10-15 बातें ही या 2-3 बातें ही आपस में एक प्रॉब्लम क्या हुआ आया, तो उसे कैसा, वो मसले को कैसा हल करना, वो मसले को कैसा हल करना, तो अल्लाह ताला वो भी बोल रहा है कुरान में, बोला क्या बोला है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारे दरमियान क्या तो भी एक झगड़ा हो गया किसी बात में, तो तुम क्या करो, तुम्हें फैसला करो, रखो, तुमना को कैसा अच्छा लगा, तुमना को कैसा सही कवाया, वैसा फैसला करो, रखो। तुम्हें क्या करो, फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, तो वो मामले को, उस मसले को अल्लाह की तरफ लौटाओ। भाई ये मामले में कुरान में क्या है वो देखो, तुमना को क्या अच्छा लगा, तुमना को क्या अच्छा सही कवाया, वो नहीं, कुरान में क्या है इसके मुताबिक, ये मसले के बारे में अल्लाह कुरान में क्या बोला है, कैसा करो कर बोला है, वो पढ़ो, उसके मुताबिक करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, कुरान में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, कुरान में मिल गई बात है, ओके, कुरान में अगर बात हम लोग समझ में आई नहीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा क्या तो परेशानी होती, मसला क्या तो भी होता, तो सहाबा क्या करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते, हजरत ये बारे में हम लोग फैसला करो, हम लोग बात समझ में आती ना है, उन्हें ऐसा करना कहते, हमें ऐसा करना कहते, क्या करना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हल बताते, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। आपकी जिंदगी में अब आपके इंतकाल के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद वो बात अल्लाह के नबी की तरफ लौटाना का, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखना, इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हैं, ये मसले में कैसा हुक्म दिए हैं, क्या नसीहत करे हैं, कैसा हमें अमल करना। तो आपस में झगड़ा हुआ तो कब तक ये झगड़ा, क़यामत तक भी, क़यामत तक आने वाले इंसानों को, मुसलमानों को अगर क्या तो भी प्रॉब्लम आता है, परेशानी, झगड़ा होता है, इख्तिलाफ राय प्योर उर्दू में, उसका मतलब क्या, तुम्हारी बात अलग, तुम्हारी राय एक है, मेरी राय एक है, राय पूरे जमते नहीं लोगों के, जब क्या करना, तो तुम्हारी राय भी नहीं, मेरी राय भी नहीं, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के नबी का हुक्म देखो, कैसा करना है वैसा करो। अच्छा, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हें अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की बात को मानने वाले हैं और आखिरत के दिन के ऊपर भरोसा करने वाले हैं, आखिरत के दिन के ऊपर कई को भरोसा करने वाले बताया अल्लाह ताला, इसलिए कि दुनिया में आदमी जो भी काम करता है वो आखिरत का एहसास दिल में रहना हमेशा उसे, मैं यहाँ ये काम करता हूँ, दुनिया में मेरा काम हो जाता है, हक हो या ना हक हो जाता है, लेकिन वो मुसलमान के दिल और दिमाग में एक बात रहना कि अगर मैं हक से मेरा माल लिया, मेरी चीज लिया तो ठीक है,
नाहक से भी अगर मैं मेरा माल ले लिया या दूसरे वाले का माल ले लिया, नाहक से दूसरे की चीज ले लिया, पैसा ले लिया, जगह ले लिया, घर ले लिया, हक मार डाला, तो दुनिया में तो चल जाती है बात। लेकिन आखिरत के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब किताब लेने वाला है, वो डर हमारे दिलों में आना। नाहक में पैसा भी ले सकता हूँ, घर, खेत, सोना, जायदाद, चांदी सब ले सकता हूँ, लेकिन आखिरत के दिन के पर भरोसा है तो वो भरोसा दिल में रहना और वो डर होना। क़यामत में अल्लाह ताला पूछा तो मैं क्या जवाब बोलना, वहां मैं चुका ले सकता हूँ क्या, मैं चुका ले सकता नहीं, तो उसके वास्ते इंसाफ से अभी चलना, वहां परेशानी आ नहीं सकता। तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बात बताई, बड़ी प्यारी बात। क्या बोलते हैं, तुम्हें लोग क्या तो एक परेशानी में आए, क्या तो एक मसले में लड़ाई झगड़ा करके आए मेरे सामने, एक आदमी हक वाला रहता है, एक आदमी नाहक वाला रहता है। लड़ाई झगड़ा कभी दो जने हक में रहते तो लड़ाई आती नहीं। लड़ाई कब आती है, झगड़ा कब आता है, एक आदमी हक पर एक आदमी नाहक पर है तो झगड़ा होता है, नहीं दो जने भी नाहक पर है तो झगड़ा होता है, दो जने हक पर है तो झगड़ा होता नहीं। एक बाप है, उसके दो बेटे ही, लाख रुपए ही, भैया तू 50,000 उठा ले, मैं 50,000 उठा, बात खत्म, झगड़ा नहीं, दो जने भी मान लिए। तो बड़ा अगर बोलता है नहीं रे मैं जरा ज्यादा दे दूं तो कम दे, तो वहां झगड़ा आता है। नहीं छोटा बोलता है नहीं मैं ज्यादा दे दूं तो ये कम दे दूं, वहां झगड़ा आता है। अगर दो जने बराबर इंसाफ के साथ चलने का इरादा रखे हैं तो झगड़े की बात ही नहीं, झगड़ा आता ही नहीं। तो नबी साहब फरमाते हैं कि तुम्हें मेरे पास दो आदमी आते ही, एक आदमी हक है उसका, हक वाला, एक आदमी का हक नहीं है, लेकिन मेरे सामने बात करते टाइम को ये हक वाला बेचारा अच्छा बोल सकता नहीं, बोलने का ढंग उसे आता नहीं है, बोलने बराबर बोल सकता नहीं है। जो नाहक में है उन्हें बोलने का ढंग उसे बड़ा अच्छा है, ऐसा बात करता है, उन्हें सुने तो उसके इंसाफ को समझ में आना, वो ऐसा बात करता है। तो मैं क्या करता हूँ, नबी साहब बोलते हैं, सो मैं क्या करता हूँ, सामने वाले के दो जना की बातें सुनकर मैं इसके हक में फैसला भी कर रहा। तो पीछे हक क्या है मुझे तो मालूम नहीं ना, इंसाफ असल में क्या चाहिए मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे बोलने के तरीके को पकड़कर मैं हो सकता है ये नाहक वाले को भी उसके हक में फैसला करा दूं, भाई तेरी चीज जा, बोला सकता हूं। हक वाला यहां से पाप बेचारा खामोश उठ कर चले जा सकता है, लेकिन क़यामत के दिन ये फैसला होता नहीं और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता नहीं, कहीं तुम ऐसा फैसला, कहीं तो वो गैब की बात नहीं, पीछे क्या चलता है वो सिर्फ अल्लाह जानता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम होता नहीं। तो उसके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुला बगाल चल गई, देखो इंसाफ के साथ तुम्हें मामले तय करो, अगर नाहक के साथ बेइंसाफ के साथ अगर तुम्हें मामले करते हैं तो यहाँ दुनिया में जीत जा सकता है, उन्हें दुनिया में जीत जा सकता है। अब वो चलता है नहीं दुनिया में, रिश्तेदार में भी चलता है, भाया भाया में, मामू भांजे को चलता है, चिचा भतीजे को चलता है, भाना भाया चलता है, साले भोने को चलती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसमें क्या है, हर आदमी क्या सोचता है, मैं जो सोचता हूँ वो सही, मेरी बात सही, मेरी इंसाफ, हालांकि उसकी इंसाफ रहती नहीं, फिर भी इंसान क्या शैतान छोड़ता नहीं, कहीं को फायदे कहीं छोड़ लेना, फायदे को कहीं को छोड़ लेना, फायदे को कहीं को छोड़ लेना। तो इंसान उसकी तरफ क्या होता है, फायदे की तरफ, पैसे की तरफ, जमीन जायदाद की तरफ झुकाव आ जाता है, उसके अंदर झुक गया, सोचे नाहक लड़ने के लिए तैयार, लड़ता है, नाहक लड़ता है भी, केसा कोटा कचेरियां बरसा लड़ो, लायरों को पैसे खिलाओ, फिर को लास्ट में हारना की जीतना की क्या एक होता है। दुनिया में इंसाफ वाले को इंसाफ मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, लेकिन इसके सारे मामलात को हल करने के लिए अल्लाह क़यामत का दिन रखा है, मालिक यौमिद्दीन, बदले का दिन का मालिक हो। यौमिद्दीन का तो क्या, दिन का तो ये दिन इस्लाम, ये दिन हमें वो दिन का मतलब बदला, हर इंसान को उसका बदला, उसके इंसाफ मिलने वाला दिन, अल्लाह उस दिन का मालिक है, उन्हें उस दिन सारे इंसानों को यहाँ क्या ऊपर नीचे करें वो पूरा करेक्ट से कर अल्लाह इंसाफ दिलाने वाला है। तो उसके बाद नबी साहब बोलते हैं अल्लाह से डरो और क़यामत के दिन से डरो, वो दिन तुम्हें चुका ले सकते नहीं। वो बात अल्लाह यहाँ कुरान में बोला है, क्या बोला है, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, अगर तुमने अल्लाह के पर भरोसा है
और आखिरत के दिन के ऊपर तुमको भरोसा है तो तुम्हें क्या करो, इंसाफ से चलो, इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारो। और फैसला करने वाले जो हाकिमार रहते हैं, हाकिम तो लीडर रहते हैं, तो उनको भी अल्लाह क्या बोलता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम्हें फैसला करो, तुम्हारे दिल से क्या फैसला करने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर कर फैसला करो। और वहां मेरा तेरा अपना गैर देखो ना, कोई इंसाफ की बात है तो बराबर इंसाफ से करो, इंसाफ की बात है तो बराबर इंसाफ के साथ करो। एक इसके बारे में एक छोटा किस्सा है, वो बोलकर बात खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपके इंतकाल के बाद 4 जने हमारे खलीफे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके बाद बनु उमय्या बोलकर एक खानदान था, वो लोग हुकूमत करते थे। तो उनमें एक आदमी थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर के नाम के वाले हैं, उनके बच्चा में सज्जा में आती हूँ। तो उनके पास उनके खानदान वाला आता है एक जना, और एक ईसाई आता है, ईसाई तो क्रिश्चियन, उन्हें आके बोलता है, हजरत ये तुम्हारा आदमी, तुम्हारा सग्गा मेरी जमीन ले लिया है, वो मेरी हजरत मुझे दिला होकर को बादशाह के पास लेकर आता है। तो इन्होंने तकरीबन 2-2.5 थे, सो बादशाह बाद में इंतकाल हो गए। जरा क्या बोलते हैं, जहर, उनके खानदान वाले जहर पिला को मार डाले, कहीं तो इंसाफ से चलते थे। तो उन्हें आकर बोला ईसाई, हजरत वो जमीन मेरी, ये आदमी देखो कब्जा कर लिया है, देता नहीं है। बादशाह का बेटा था उन्हें, उसके पहले, इनके पहले का बादशाह का बेटा था। तो उन्हें पूछे क्या भाई ऐसा बोलता है ना, तो नहीं वो जगह मेरी, क्या प्रूफ होगा, हमारे अब्बा मुझे लिखो दी, देखो आज के जमाने में पट्टा है नहीं, पट्टे के कागजा, तो वैसा गवर्नमेंट देती है ना, तो वैसा हमारे अब्बा दिन से कागज है, देखो देखे देखे तो है, फलान जमीन मेरे बेटे को मैं देता हूँ, कह के लिखो है, इसका है, उसमें है पैसा। तो उन्होंने बोले क्या भाई उसके पास कागज है ना, पट्टा है ना? तो उन्होंने बोला ये कागज को नहीं, अल्लाह के हुक्म के बराबर तुम्हें फैसला करो, अल्लाह के हुक्म के बराबर तुम्हें फैसला करो, अल्लाह की किताब के बराबर फैसला करो, ये कागज बढ़ गई, अल्लाह की किताब बढ़ गई। तो इन्होंने बाद में पूछे आदमी को, सच बोल किसकी जगह हो? हाँ हमारे अब्बा मंजे हुई, तेरी नहीं क्या? हाँ जरा आगे पीछे बातचीत। तो बोले जा कागज सट, जा तेरी जमीन तू ले ले जा, तेरी जमीन है तू जाओ, उजरात करना क्या करना ले ले जा। तो इंसाफ, जब इंसाफ करने का मौका आया तो इन्हें खानदान वाला रिश्तेदार, लेकिन और बादशाह का बेटा भी, पुराने बादशाह का बेटा भी, लेकिन इंसाफ नहीं, उसके हक में नहीं। क्यों? उन्हें ना इंसाफी में है, बेइंसाफी में है। और इंसाफ वाला उन्हें गैर, और उन्हें क्रिश्चियन, ईसाई, लेकिन उन्हें क्या करे, उसके हक में फैसला करे। तो ऐसा फैसला करना, ऐसा फैसला करना, ऐसा हिंदुस्तान में भी एक केस चला, हमारे इंडिया में भी ब्रिटिश वाले के जमाने में मुसलमानों की जगह, मुसलमानों की जगह, हिंदू क्या बोलते हैं, नहीं वो हमारी जगह, कहते हमें खाली जगह है तो हमारी, इनमें बोलते नहीं हमारी जगह मुसलमानों की मस्जिद बन लेना, वो तो नहीं हमारी, हमें देवल बन लेना आकर को। वो जमाने में चले था छोटा। तो ब्रिटिश वाले के पास गया केस, ब्रिटिश वाले थे ना अंग्रेजा, अब बुला को पूछे, बुला को दोनों को पूछा, जज आओ तुम्हें आओ, क्या तुम्हारा हिस्सा? इन्होंने इनका ये बयान दिए, उन्होंने उनका बयान दिए, अब क्या करना? तो इन्हें क्या करे, जज को बोले उनके हजरत ही, उनके हजरत को बुलाओ, उन्हें बोलती ही मुसलमानों के हजरत, तुम्हें नहीं, दूसरे कौन तो गवाह है तो बोलोगे, तो मुसलमानों के हजरत ही बुलाओगे। उनको बुलाए, उन्होंने आकर देखे तो जगह क्या है कि हमारी मुसलमानों की, अब इन्होंने पूरे आ गए हैं, लड़ाई झगड़ा होने का है, मारपीट होने का है। तो इन्हें क्या बोले, वो जगह उनको दे डालो, हिंदुओं दे डालो। अब खुद इनका आदमी बोलता है तो अब क्या करते, जज लिख डाला ये जगह इनके हवाले करो, हिंदुओं के, इनको हक वो कर लिखो। नीचे लिखा मुसलमान हार गए ही, ये केस में कौन जीता कौन हारा दिखना ना, लेकिन इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गए हैं,
लेकिन इस्लाम जीत गया। और तो उसे मालूम थी ये मुसल जुल्म जबरदस्ती करते हैं, आंख को नाक लड़ते हैं, उसे मालूम था। तो उसके बाद से उन्हें जजीमन में लिख डाला। मुसलमान हार गए हैं लेकिन जीत इस्लाम की हुई। लड़ाई होना नहीं, मारा धाड़ी होना नहीं, हमारा हक छोड़ जब जान दे ले, जब जान दे, लड़ाई होना नहीं कर बोल को करे कर बोल, उन्हें जजमेंट में लिखा है। तो ऐसा हमारे मुसलमान इंसाफ के साथ, कुरान में भी एक आयत है दूसरी जगह, ऐ लोगों इंसाफ के साथ तुम्हें ये करो। अगर इंसाफ करने के लिए अपना आदमी भी अगर नाहक के साथ है तो उसकी तरफदारी मत करो, और जो हक वाला है उसके साथ इंसाफ करो को अल्लाह ताला कुरान में भी बताया है। उसके बाद क्या फरमाया, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, और ये क्या, अल्लाह का डर, अल्लाह के ऊपर ईमान जो है और सही बात को सही तरीके से लेना और उस पर अमल करना है, ये बेहतर है तुम्हारे हक में, और सही रास्ता यही है। अब बात तो यहाँ को खत्म हो गई। अब सिर्फ अब ये जमाने के हिसाब से, हमारे मुसलमानों के हिसाब से ये आयत को लेकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उलिल अम्री मिनकुम का मतलब क्या, तुम्हारे ऊपर कौन हुकूमत करते हैं उन्होंने कैसा बोला जो है चलो इंसाफ से, उन्होंने भी इंसाफ से बोलते तो इंसाफ चलो। इसे ला करके ये आपको हमारे इमामा को मानने के बारे में बोले तो अल्लाह तो वहां लगा को ठोसते हैं। क्या वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बोले हमें सुनना सो, ये वो आयत वो चार इमामा ही हमारे, हालांकि इमामा की बात यहाँ नहीं है, लेकिन इसे लगा को जोड़ कर क्या करते हैं कि सामने वाले आलिमा नहीं तो इन्हें बोलने वाले आलिम से क्या करते हैं ना, वो कुरान का मतलब ये भाई तो बोल को हमें हमारे इमाम बोले इसका सुनना। अच्छा, वो बात के अगर जर्रा खुद के वास्ते उनकी बात हमें मान लेंगे एक हाजे के वास्ते, वो बात तो सही नहीं, लेकिन एक हाजे के वास्ते मान लिए तो उसके नीचे क्या है, अल्लाह क्या फरमाए, अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या करो, अल्लाह की तरफ लौटाओ। बात है कहते अल्लाह के नबी की तरफ लौटाओ, कहते तुम्हारे इमाम की बात मानना है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात मानना, अल्लाह खुल्लम खुला बोला है। लेकिन हमारे खासकर इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो मुसलमान आलिमा ही अल्लाह के कसम क़यामत के दिन ऐसा पकड़े जाएंगे, ऐसा पकड़े जाएंगे, जिन लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हुए मालूम होकर भी क्या करते हैं, हमारी बात चलना, हमारा ग्रुप, हमारी जमात, हमारा ग्रुप, हमारे हजरता, हमारे बुजुर्ग, हमारे अमीर साहब, हमारी बात चलना करो, क्या करते हैं बहुत सारे बातों को खुल्लम खुल्ला मानने के लिए तैयार नहीं। हमारा ग्रुप हारगस का होता है, हमारे ग्रुप की बात जीतना हमें बल्ला के ही। तो ऐसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये बहुत बीमारी फैल गई मुसलमानों में, और आलिमा में भी ये बीमारी फैल गई है। उनको देखो भाई कुरान में ऐसा है, मानने के लिए तैयार नहीं, रखो बाजू को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हदीस के अंदर है, नहीं क्या हमारे हजरत बरस का सुनना, कहीं को भाई तुम्हारे हजरत बरस का सुनना, कुरान में है देखो, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ला करके ठोसते हैं, और उसके नीचे जो बात है वो बात को लेने के लिए तैयार नहीं। और इंसान हमेशा कहाँ उनका जोर चलता है, उनकी बात चलती है कि वहां चलाते रहती, हक ना हक नहीं, वो दुनिया के काम में रहते, दिन के काम में भी रहते, दुनिया के काम में भी रहते, दिन के काम में रहते। हम लोग तो मालूम होगा है हमारे भैया हमारे बल्ला के दुश्मन है, क्या बोलते हैं, हाँ उन्होंने रफेदन करके नमाज पढ़ती, आमीन बोलती, और उनके पीछे नमाज पढ़ना नहीं। अच्छा, फिर तुम मक्के कहते हैं, कैसा करते हैं, मक्के का इमाम रफेदन करते हैं, मदीने का इमाम रफेदन करते हैं, मक्के का इमाम आमीन बोलता है, मदीने का इमाम आमीन बोलता है, वहां क्या भी बोलते हैं, कहीं को वहां बोले तो मार को पुलिस अंदर जेल में डालती है। यहाँ है तो हम लोग लड़ने, धोड़ने, मारने, यहाँ तो मस्जिदां जला डालने, हजरतां को मारने, पुलिस के एहसान करने, सब करती हैं। वहां जाकर करो ना, यहाँ करे वाले कौन कौन करते हैं कि इन्हें वहां जाकर करो ना, कहीं भाई तुम ऐसा करते हैं, मक्के के मस्जिद देखो हजरत तुम्हारे कहीं रफेदन का नमाज पढ़ के आमीन करते हैं, बोलो वहां बोलो ना, बोलते हैं मारे से पुलिस लाकर जेल में डालती है। हाँ उनकी बात चलती नहीं, उसके वास्ते वहां खामोश आती। यहाँ होते को नाहक के लिए लड़ते 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 उनकी पूरी ताकत डाल को लड़ते, तो ये भी चलता है। तो बहरहाल आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान मजीद को सारी ज़िंदगी कुरान मजीद को पढ़ने, सुनने, समझने, याद रखने और उसके मुताबिक अमल करने का अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, और सारी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने, पढ़ने, याद रखने, समझने और उनके मुताबिक अमल करने की
तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।